ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द कंस्ट्रेंट मोशन. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन? एनी आइडिया? Okay. See, when the motion of one of the particle is dependent on the other particle, which is restricted by the other particle, well, those kind of motion is called as a constraint motion. Well, all good. Now we can have, primarily we can have string and the spring constraint and the wedge constraint. We can have the pulley constraint that we are going to discuss in the rotation. उसमें pulley constraint आता है. But for you in the NLM part, we are going to deal with the three constraint: spring, string, and the wedge. Today I'm going to cover two of them, which is the spring constraint and the wedge constraint. Spring constraint को आज cover करेंगे and wedge को cover करेंगे. Wedge constraint. And दोनों काफी इंपॉर्टेंट है. These are very important. इसमें क्वेश्चन आपको दिखेंगे ही दिखेंगे. Alright. Now let us understand what is the constraint of the string. String में होता है क्या? First, string is massless, that is given to us. Second is कि string is inextensible. That means उसका length नहीं बढ़ता है, ना ही decrease करता है. That is the second constraint. All good? Yeah? Great. Now, third point which we should know, which we're going to use in the calculation part की string का जो velocity होता है, all the points on the string along the string should be same. तो just note, write on a point will string constraint में, you know, along the string velocity of each point are equal, are same. अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? स्ट्रिंग ब्रेक कर जाएगा या फिर वो स्लैक कर जाएगा. सपोज वन पॉइंट, लेट अस सपोज दिस इज स्ट्रिंग है ना, और इसके एक पॉइंट को मैं ज्यादा स्पीड दे रखा, इसको कम दे रखा, ऑब्वियसली इट हैज टू ब्रेक. देखो जस्ट फॉर एग्जांपल टूट गया. और अगर लूज करते हैं, फॉर एग्जांपल द वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट इज मोर देन द वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट, ये स्लैक कर जाएगा अगर इस डायरेक्शन में तो ना. तो स्लैक का मतलब होता है कि देयर इज नो टेंशन. सो दैट इज अ कंस्ट्रेंट एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. से फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 2 पॉइंट्स है ना, इस पॉइंट को वेलोसिटी ले लो. सपोज वी गोना गिव इट समवेयर हियर विद अ v1, मेकिंग सम एंगल, लेट्स से फॉर एग्जांपल कुछ भी ले लो अल्फा, एंड लेट्स से दिस पॉइंट is given a velocity this way. Maybe we can say v2 and having some angle as, let's suppose beta. Let's say this point is A and this point is B. Like we know the velocity of the point B along the string and the velocity of the point A along the string should be same. All good? Let's take the component then. We're going to have v1 cos alpha and this side we are going to have v1 sin alpha. Likewise, well, we are going to have two components of this v2 as well. One is going to be along the string, which we are going to say v2 sin beta, and this one we're going to say v2, my bad, it should be cos, है ना, एक cos हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका sin beta. Not necessarily v1 and v2, but one thing is pretty much sure कि v1 cos alpha and v2 cos beta has to be same. वो दोनों सेम होगा, है ना, वरना स्ट्रिंग शुड ब्रेक ना, राइट. तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट क्या बोलता है भाई साहब? इट्स गोना बी v1 cos alpha should be equal to v2 cos beta. वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट बेल, इसको आप नोट कर लो. v1 cos alpha is equals to v2 cos beta. ये आपको इक्वल होना ही चाहिए, अदरवाइज स्ट्रिंग इज गोइंग टू ब्रेक और स्लैक. करेक्ट है ना? Okay, now just quickly note it down. We'll do a problem on this. All right, let's have an example. So for example, I think you must have seen this before. Let's do it one more time. Let's say there's a pulley and there's a block. Well, string is connected to that block as well as to another block which is kept on, let's suppose, smooth surface horizontally. Let me just make this block move with the velocity कुछ भी 5 मीटर पर सेकंड ले लेते हैं ना, and let's say this angle probably we can say is how much, let's say 37 डिग्री और 53 ले लो, आपकी मर्जी कुछ भी ले लो. Now the question would be, if suppose block A is moving with 5 meter per second, then you got to find me the velocity of block B. Let me just give you one more value over here. Let's say this is V. All correct? Now you got to tell me the value of V. Find V. Simple. Well, that is the question. So
just draw this out. I'm going to help you. All right, like you can see, well, the string is connected to this block as well as this block. That means motion of the blocks are constrained. Now this is called constraint. As you can see, if I'm moving this block must be moving. इसको मूव करना ही पड़ेगा बेचारे को. अगर ये मूव नहीं करेगा तो string is going to break, right? So the point of contact, let me just use a red color over here. This is the point of contact of the block with the string. So this point lies on both string as well as on the block. तो यहाँ पे string constraint काम कर जाएगा क्योंकि string है ना? तो string constraint क्या बोलता है? Component of the velocity along the string should be same, right? Yeah. Now, so this point is having a velocity v. Similarly, similar to this much, similar to this one, you know, v. As you can see, this point A is having a velocity v2. उसी तरह से ये हमारा कैसा velocity है जी? v इस तरफ दिख रहा है. इसका component along the string क्या होगा मैडम? v cos alpha. Very good. So this is going to be v cos of 53 degree over here because alpha is 53. Correct है ना जी? अच्छी बात है. Now one component is going to be along this way, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है. वो रहे ना रहे क्या ही फर्क पड़ता है. बट इसका मतलब है we need this one which is v cos 53 degree. अच्छा मैडम बताओ, एक किसके बराबर होगा? cos 53 कितना होता है जी? What is the value of cos 53? अरे वाह, 3/5. And don't you think this should be the equal to this value? Na. This block is moving with the 5 meter per second. That means a string भी 5 meter per second से जाएगा जी. Exactly. क्योंकि if the string is going with the 5 meter per second, a point भी string का 5 meter per second से जाएगा, a वाला point भी 5 meter per second से जाएगा, likewise a वाला point भी 5 meter per second से जाना चाहिए ना, which clearly means madam v cos 53 degree should be equal to how much? 5. And cos 53 we know it's going to be 3/5. So v should be how much? 25/3 meter per second. समझ में आया आपको? बहुत अच्छे. इसको नोट डाउन कर लो फटाफट. Meanwhile, I'm going to draw one more diagram for next question. Let's say we have here. Let me bring one normal wedge over here. I think this marker is over. ये अपनी आखिरी सांसें ले चुका है. Let's say there is a pulley. All good. Let me connect this with the support which is at rest. और यहाँ से एक और ब्लॉक मैंने डाल दिया यहाँ पे, ऐसा देख लो. Well, we can just give it a mass, दे सकते हैं, बट कोई जरूरत नहीं है. So let's still, चलो तुम्हारी खुशी के लिए let us have the mass as m. इस छोटे ब्लॉक का, इस वेज का मास मान लो कैपिटल M है और ये एंगल हमारा थीटा है जी. करना तो ऐसे किसी के मास का नहीं है बट फिर भी लिख लो. नाउ लेट्स से दिस वेज इज मूविंग विद वेलोसिटी v. हाँ, नाउ ऑब्वियसली इफ द वेज कम्स दिस साइड, ए ब्लॉक तो नीचे जाएगा ना विथ रिस्पेक्ट टू दिस वेज, तो ऐसे जाएगा ना वो इस तरफ, क्योंकि स्ट्रिंग तो एक ही है, वो इनएक्सटेंसिबल है, वो थोड़ी को छोटा हो जाएगा, तो इट विल रिटेन इट्स लेंथ, तो इट्स गोना गो डाउन. तो मान लेते हैं कि इसका वेलोसिटी जो है ना वो u है विथ रिस्पेक्ट टू द वेज. आपको क्या करना है? फाइंड u इन टर्म्स ऑफ v. इन टर्म्स ऑफ v, ये आपका सवाल है. तो यू कैन सी कि यहां पे भी क्या है जी, वी हैव अ ब्लॉक स्ट्रिंग, वो कनेक्टेड है. दैट मीन्स यहां पे भी कंस्ट्रेंट होगा क्योंकि ब्लॉक किस पे? वेज पे. वेज भी मूव कर रहा है. दैट मीन्स द मोशन ऑफ वन ऑफ द ब्लॉक इज डिपेंडेंट और रिस्ट्रिक्टेड बाय द अदर बॉडी, व्हिच मींस इट इज अ कंस्ट्रेंट. अब क्योंकि स्ट्रिंग इन्वॉल्व है तो हम लोग स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का बात करेंगे, वेज का भी बात कर सकते हैं, बट यहाँ पे स्ट्रिंग पे फोकस रहेंगे हम लोग, तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का बात करेंगे. ऑल गुड या? अच्छी बात, ध्यान से देखते हैं ना. इसको थोड़ा लॉजिकली समझो पहले विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. लेट मी जस्ट कम दिस साइड. मान लेते हैं मैडम कि दिस वेज हैज रीच्ड फ्रॉम हियर टू हियर, यहां कहीं आता है. लेट्स से बाय डिस्टेंस ऑफ x. आई एम जस्ट ड्राइंग दिस लेंथ. तो ये x डिस्टेंस ट्रेवल करके ना वो इधर आता है. तो ये जो स्ट्रिंग है ना, ये कहां जाएगा? ये जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, दिस पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, वेरी गुड, वो नीचे जाएगा जी.
दैट मीन्स ये जो ब्लॉक है वो भी नीचे आ जाएगा बाई लेंथ ऑफ एक्स, डिस्टेंस ऑफ एक्स। कैन वी से दैट? मतलब कि मैडम वेट अ सेकेंड, द वेज का जो मूवमेंट है एक्स ऑफ वेज सेम ही है, इज इक्वल टू एक्स ऑफ ब्लॉक। दैट मीन्स इफ आई डिफरेंशिएट दिस, मैडम मेरी क्यूरी, you'll be having velocity of the wedge should be equal to the velocity of the block, which is u over here. Wedge is equals to x of the block. So if I differentiate this with respect to t, obviously I'll be getting the velocity. Velocity of the wedge equals to the velocity of the block. एक रिलेशन आ गया कि दोनों का इक्वल होगा वेलोसिटी। दैट क्लियरली मींस u is equals to what? v। समझ में आया? ना सो दिस इज प्रीटी सिंपल अरेंजमेंट है ना। तो एक सिंपल से एक पुली है, एक ब्लॉक है, एक वेज है, तो इजीली बन गया। वी मे हैव द कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन जहां पे ना ऐसे एक्स को वेरी फिगर आउट करना probably could be slightly difficult. So under those circumstances we should know something else, और उस समथिंग एल्स का नाम है पॉइंट मेथड। काफी इफेक्टिव मेथड है, तो आप समझेंगे पॉइंट मेथड। तो हेडिंग डालिए पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड पॉइंट मेथड दिस इज वेरी इफेक्टिव मेथड, काफी काम का मेथड है ना। तो लेट मी मेक इट स्टार ओवर हियर। ये पुक्कू के खिलौने सारे इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं। अरे ही इज स्लीपिंग नाउ सो दैट इज व्हाई आई एम एबल टू मेक द वीडियो। सो रहा है अभी, शैतान सो रहा है। एनीवेज देखो पॉइंट मेथड क्या होता है जी। So we're gonna first figure out the points of contact of the string with the other bodies. So first contact I can see here. Let me just label it as point 1. All good? Now this is a point of contact number 2, and this damn thing is a contact number 3. क्या बात कर रहे हो? Okay. 1 2 3 4 अर्थ आಯ್ತಾ? So we have point 1 2 and 3, and of course the fourth point of contact. अब ना मूवमेंट को देखो, अब ना आप ऐसे देखो। Let me use the same diagram to demonstrate this point method. I'll just remove this dotted line. Let me use the point method. इधर ही समझा देता हूँ ना, point method. आप ऐसे समझो, look at this point 1 and 2, और इसके बीच का जो स्ट्रिंग है ना उसको आप वन सेगमेंट लो। टेक दिस एज वन सेगमेंट। इसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। इट इज लाइक अ सेपरेट एंड इंडिविजुअल आइडेंटिटी ओवर हियर। If I point 1 को if I move this side, keeping the point 2 at rest, so will the length increase or decrease? 1 towards left, will the length increase or decrease keeping the point 2 at rest? मतलब लेंथ इसका बढ़ रहा है ना, करेक्ट है ना? वेरी गुड। If I move the point 1 towards right, keeping the point number 2 at rest, will the length increase or decrease? Decrease. Clear है ना? अच्छा, so whenever the movement of a point increase the length of the string, आप उसको पॉजिटिव स्पीड या एक्सेलरेशन से रिप्रेजेंट करोगे, एंड whenever that point when it is moving is contributing as a decrement of the length, आप उसको नेगेटिव लिखोगे। क्लियर है? उस पे आएंगे, we'll come to that. I'm just talking in general. Well, you know, for each segment, obviously एक string का segment will have 2 points, this and that, और तो होगा नहीं ना। तो let's suppose कि this point is at rest, ये वाला रेस्ट पे है, 2 को रेस्ट पे मानते हैं, एंड 1 को मैं मूव कर रहा हूं लेफ्ट, तो क्या होगा? बढ़ेगा, लेंथ वुड इंक्रीज। दैट मींस कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस पॉइंट इन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज पॉजिटिव, वो इंक्रीज कर रहा है। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं 1 को इस तरफ मूव करूं, then that is going to decrease the length of the string. Yes or no? Correct. So whenever we have the sense of decrement, we are going to use the negative, and in the sense of increment, we are going to use the positive. Well, the positive could be for x, v और a. हमको जो चाहिए उसी में लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे वेलोसिटी निकालना है तो I'm going to use the terms velocity. ठीक है? अगर इफ सपोज दे वुड हैव आस्क्ड यू टू फाइंड द एक्सेलरेशन, तो हम लोग एक्सेलरेशन को यूज करते हैं। अगर x निकालना होता है डिस्प्लेसमेंट, तो x को यूज करते हैं। वही सेम पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ। अर्थ आता? क्लियर है?
कूल, लेट मी जस्ट देन हेल्प मी आउट। पॉइंट वन क्या है, रेस्ट पे है। इज इट मूविंग? नो, दैट मीन्स इट्स कंट्रीब्यूशन टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल बी हाउ मच? जीरो। किसी काम का नहीं, वो बैठा हुआ है। अच्छा, पॉइंट टू को देखो ध्यान से। पॉइंट टू इज ऑन द pulley which is strapped on the wedge and the wedge is moving towards left with the velocity v. What that means, the point 2 also has a velocity of v towards left. Yes or a no? Yes. And it is decreasing the length of the string, right? Cool. That means I'm going to put what? Minus v. Cool. Now have a look at the point number 3. Well, point number 3 will also be moving towards left only. तो मैं ना अभी 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए आई एम रिमूविंग दिस 2। 3 को देखो, लेट मी जस्ट हैव इट हियर ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ऐसा कुछ है, दिस इज माय पॉइंट नंबर 3 एंड दिस वाज द पॉइंट नंबर 2 व्हिच ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। अच्छा जी, ये पॉइंट नंबर 3 कैसे मूव कर रहा है? ऑब्वियसली पुली के साथ लेफ्ट में मूव कर रहा है जी, हाँ है ना? बट व्हाट डज द स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट टेल अस? It tells us that the velocity component of the along the string, right? हाँ, तो भैया ये velocity जो v है ना, is that along the length of the string bill? Is no, very good, शाबाश। That means we need to figure out the component of this velocity along the length. So I just made some dotted lines over here. Knowing the fact that this angle is theta, I'm sure you will agree that this angle should also be theta bill. That means this is going to be v cos theta. Correct? Yeah, cool. Now, well, this velocity component v cos theta, is it increasing the length of this segment between 3 and 4? ये 3 इसकी लेंथ को इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? ना 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 ना, 3 इज मूविंग दिस वे ना। नहीं, फोर्थ को रेस्ट पर रखो, फोर्थ को रेस्ट पर रखो। वी ऑलवेज डील विथ वन पॉइंट मूविंग, अदर को रेस्ट पर रखते हैं, है ना? व्हेन द फोर्थ इज एट रेस्ट, 3 जा रहा है इस तरफ, तो लेंथ छोटा हो रहा है कि बड़ा हो रहा है? बड़ा होगा। दैट मींस प्लस v cos theta. Are you okay with this? Now look at number 4. अब 4 का वेलोसिटी देख लो ना, ध्यान से देखना 4 को। यहीं पे मेजर ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द किड्स मेक मिस्टेक एट द पॉइंट 4। इधर ही मिस्टेक करते हैं वो। उनको लगता है पॉइंट 4 तो नीचे जा रहा है मजे में, बल्ले बल्ले सावा सावा, बट वो गलत है। पॉइंट जो ब्लॉक है ना, वो वेज के साथ लेफ्ट भी तो आ रहा है। हाँ, दैट मींस दिस डैम पॉइंट 4 has a velocity equals to v towards left. If I saying anything wrong, madam? That is correct. But let us first figure out the components of the v along the length, because this damn thing is not along the length of the string, isn't it? तो पहले से components को तोड़ तोड़ करेंगे ना। Well, this is theta, so this fellow should also be theta. तो ये कितना हो जाएगा भाई? This is gonna be v cos theta. और ये component इस तरफ जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है in this particular case. And this v cos theta is actually moving up, which means it is decreasing the length of the string segment 3 and 4, है ना? अच्छा जी, तो डिक्रीज कर। Now let me ask you one thing. Let's say this is 0.4, this is 0.3. 0.3 is going up, right? और इसको रेस्ट पर रखें, ऐसे पकड़ के खींच रहे हैं इसको, तो लंबा हो रहा है कि छोटा हो रहा है वो? अच्छा, इस पॉइंट को धक्के मार के ऊपर ले जा रहे हैं, इसको रेस्ट पर रख के। अब छोटा हो रहा है कि लंबा हो रहा है? छोटा हो रहा है। तो माइनस, and this 0.4 obviously is going downward with the velocity u along the string. Equals to, ये मर गया, u and v become equal, u is equals to v, है ना? Well, let's not make it a generalized rule. वो हर एक जगह काम नहीं करता। अभी I'm going to show you. We just had one pulley, तो इसलिए काम कर गया, ऐसा नहीं कि हर एक जगह काम करेगा। I'm going to show you multiple pulleys combinations. As of now, इसको आप लिख लो। हाँ जी, ये क्लियर है? All good with this? अब ना इसमें एक और तरीका है। तो दिस वी हैव एनालाइज्ड फ्रॉम द ग्राउंड, हम लोग जमीन पे खड़े होकर देख रहे थे। व्हाट इफ आई सिट ऑन द वेज इटसेल्फ? अगर हम वेज पे ही बैठ जाते हैं तब क्या होगा वो देखो, और बड़ा मजेदार है, उससे कहानी थोड़ा और आसान हो जाएगा।
वेरी गुड. सो लेट मी सिट ऑन द वेज. मैं इधर लिख दूं कहीं? फ्रॉम वेज फ्रेम. लेट मी सिट ऑन द वेज. द मोमेंट आई सिट ऑन द वेज, point 2 and 3 are at rest with respect to me, isn't it? मतलब इनका काम खत्म. Now you will feel, being on the wedge, that point 1 is moving towards you with a velocity v. हाँ या ना? अच्छा, सपोज कि मैं वेज पे खड़ा हूं and wedge is moving this way, so relative motion 1 will appear to me that if it is coming towards me ना, with the same velocity v. करेक्ट है ना जी? अच्छा, and it is coming, that means it is decreasing the length of the string. तो मैं लिखूं माइनस v. ऑलराइट. अब 2 और 3 किसी काम का नहीं है, इनका कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, बिकॉज दे आर एट रेस्ट. तो 0 लिखना ना लिखना बराबर इस केस में. अच्छा, पॉइंट 4 कैसा मूव कर रहा है? डाउन, है ना? ए वाला वेलोसिटी तो पॉइंट 4 का गया, अब तो किसी काम का नहीं है, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू मी वो तो रेस्ट पे है ना. ए वाला वेलोसिटी भी गया जी. तो एक ही वेलोसिटी इसके पास है, व्हिच इज u, और u किस तरफ है? डाउनवर्ड, व्हिच मींस इट इज इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. सो आई वुड जस्ट राइट, मैडम, प्लस u should be 0, that means u is equals to v. एक लाइन में आंसर आ गया जी, है ना? हमारा 2 और 3 खत्म हो गया, तो v cos थीटा वाला पॉइंट सब मर गया, है ना? समझ में आया? अच्छा, अब इसी को यूज करते हैं यहां पे, स्ट्रिंग कांस्टेंट. सेम लॉजिक, इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना होना चाहिए अलोंग द स्ट्रिंग, जो इसका वेलोसिटी है. या फिर ऐसे देखो, इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट के पास कैसा वेलोसिटी है? v है इस तरफ, बट अलोंग द स्ट्रिंग कितना हो जाएगा? v cos 53. और क्योंकि डिक्रीज कर रहा है इसके लेंथ को ना, इफ द b इज मूविंग दिस वे, तो लेंथ डिक्रीज कर रहा है, हाँ या ना? तो कितना है इसका? v cos 53 कितना हो जाएगा जी? आपका हो जाएगा 3/5 v. ठीक है, ये वाला पॉइंट रेस्ट पे है इफ आई एम लुकिंग फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम, और ये वाला पॉइंट भी रेस्ट पे ही है ग्राउंड फ्रेम से, बट ये वाला पॉइंट मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, एंड इट इज गोइंग अवे, दैट मींस इट इज गोइंग टू इंक्रीज द लेंथ, है ना? तो कैन आई राइट 3/v नेगेटिव प्लस 5 पॉजिटिव इक्वल्स टू 0. अच्छा, v है ना, तो v शुड बी हाउ मच? 25/3. किस में? इसमें? हाँ, तो b कैसा हो गया? ब्लॉक पे है ना, a पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो लेट मी राइट द नंबर आल्सो इफ यू वांट. दिस इज द पॉइंट नंबर 1, ए कांटेक्ट पॉइंट नंबर 2, ए वाला कांटेक्ट पॉइंट नंबर 3, और ये वाला कांटेक्ट हो गया पॉइंट नंबर 4. तो 2 एंड 3 तो रेस्ट पे, क्योंकि दिस पुली इज नॉट मूविंग, तो 2 एंड 3 तो रेस्ट पे हो गया. 1 इज मूविंग एंड 4 इज मूविंग, तो 1 का कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग 3/5 v है, और ये डिक्रीज कर रहा है, तो -3/5 v है ना. और ये जो फोर्थ है वो मूविंग विद 5 मीटर पर सेकंड लेफ्ट, और इंक्रीज कर रहा है, तो +5 इक्वल्स टू 0, v इज इक्वल्स टू 25/3. इज इट क्लियर नाउ? गुड. तो ये हमारा स्ट्रिंग कंस्टेंट है. चलो एक क्वेश्चन करके दिखा. लेट्स डू वन क्वेश्चन बेस्ड अपॉन दिस. Say for example, I have a system like this. एक कुछ ऐसा ही वेज रखते हैं. Let me just increase the number of pulley this time, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा. ऐसा हमारा एक वेज है. एक पुली इज हियर, वन पुली इज हियर, वन पुली इज हियर, और ऐसा कुछ सिस्टम है अनंत. तो लाइक दिस, here we go. Now like this. Say this is mass m moving down with velocity u, और ये हमारा v है इस तरफ. सेम क्वेश्चन है, फाइंड द रिलेशन ऑफ u एंड v. सेम क्वेश्चन है, फाइंड द रिलेशन ऑफ u एंड v. Let me just give you this angle as probably 37 degree. Find the relation of u and v. The angle is 37 degree over here. So step number 1, points we have to locate of the contacts. पहला point तो यहाँ पे हो गया. Second point we can see here. Third point we can see here. Fourth point is here. Fifth is here. Sixth we have here.
and the seventh one we have here, and the last 8 over here. All correct? Yeah. Now obviously I'm going to observe it from the wedge का frame, that makes it easier for us ना. तो चलो बैठ जाते हैं हम लोग wedge पे, बैठ जाते हैं. नहीं, 3 भी गया, 2 भी गया, हाँ 8 भी गया. वेरी गुड. तो 2 3 8 are खत्म because we are sitting on the wedge and they are moving with the wedge. वो लोग गया. अच्छा, have a look at the sixth and the fifth, Ananta. Fifth will have a velocity towards this and the sixth is also have a velocity towards this. दोनों का velocity component v होगा. करेक्ट है ना? No, let us talk about this situation first. The wedge is moving towards this, है ना? So fifth and sixth, you will feel that they are coming towards you. Correct. But the string जो इनके बीच में है वो ऐसा है, पैरेलल टू वेज. तो 5 इस तरफ आ रहा है और 6 भी इस तरफ जा रहा है, लाइक दिस 5 and 6. तो इसके कारण इज द लेंथ ऑफ दिस पार्ट चेंजिंग? नहीं. दैट मींस 5 और 6 किसी काम का नहीं है इन टर्म्स ऑफ चेंज ऑफ द लेंथ, है ना? इस स्ट्रिंग का लेंथ को चेंज नहीं करा. पैरेलल मूवमेंट, पैरेलल मूवमेंट से स्ट्रिंग का लेंथ चेंज. एग्जैक्टली, ठीक है, सेम थिंग, कभी चेंज नहीं होगा 5 and 6 के कारण, है ना? अच्छा, बट 4 and 7 इज कंट्रीब्यूटिंग टू द डिक्रीमेंट ऑफ दीज टू पार्ट्स, राइट? फोर्थ का वेलोसिटी कैसा होगा जी? राइट वर्ड विद वेलोसिटी v, और इन भाई साहब कितना हो गया? v हो गया. अरे नहीं, आप यू आर अपीयरिंग, यू आर लुकिंग फ्रॉम द वेज ना. तुम वेज पे, तब तो वो रेस्ट पे होता, ग्राउंड के फ्रेम से सभी रेस्ट पे ना. इफ आई एम वाचिंग इट फ्रॉम हियर, द पुलिस आर नॉट मूविंग, वो मूव नहीं कर रहा ना, वो रेस्ट पे होता. ग्राउंड के फ्रेम से ए सभी रेस्ट पे होता, बट ए मोशन में होता. तो जो कंपोनेंट्स निकालना होता है ना, वही बस पंगा लगता है. बाकी वो भी आसानी है, कोई दिक्कत नहीं. वी cos थीटा अपन को पता ही चल चुका अब तक. बाय हैविंग दिस थिंग वी नो दैट्स गोइंग टू बी वी cos थीटा इस तरफ, इन भाई साहब का हो जाएगा वी cos थीटा इस तरफ, है ना? दैट आल्सो वी नो. बट एनीवेज, ए v और ए v, इट इज डिक्रीजिंग द लेंथ, है ना? तो कैन आई से द कंट्रीब्यूशन टू दीज टू को लिख दूं मैं -2 times of v. Okay, now have a look at the point 2 and 3. Like I've told you, they are on the pulley, so they are not contributing. 1 का जो contribution है वो downward है with velocity u, and that is increasing the length. So plus u should be 0. That means u is equals to 2 times of v. बस क्या हो गया? हाँ बिल्कुल. चलो एक और करते हैं. Let's do one more. मान लेते हैं कि ऐसा कुछ हमारे पास वेज है. एक पहला काम तो उस ब्लॉक को लगाते हैं इधर, और यहां से ना एक पुली लगा दो, और यहां से स्प्रिंग को ले आते हैं नीचे ना. एक और पुली लगा दो जी, ऐसे क्या, एक और पुली लगा दो ऐसे ना. यू वांटेड टू हैव मोर कॉम्प्लेक्सिटी, तो लगा दो, कोई से फर्क पड़ता नहीं है. चौथा एक और लगा दो पुली. चलो इसको भी लगा दो, है ना? एक और पुली लगा दो. ठीक है, इतना पुली काफी है. ठीक है. लेट्स से दिस वेज इज मूविंग विद वेलोसिटी v, आपको निकालना है जी, और दिस इज मूविंग विद वेलोसिटी u. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द u इन टर्म्स ऑफ v. स्ट्रिंग कंस्टेंट, यस. तो देखो, अब क्योंकि टाइम सेव करना है, अब इतना टाइम तो है नहीं कि बैठ के पॉइंट लिखते रहे. तो इस पॉइंट को खत्म करो, इस पॉइंट को खत्म, है ना? दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग. थोड़ा इसको अच्छे से बना देना, ये दिखने में दिख ही नहीं रहा है कि क्या है. रुको, थोड़ा इसको और अच्छे से बना देना. लेट्स मेक इट स्लाइटली बेटर. अभी ठीक है ना? ठीक है, ओके. तो दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट गॉन, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट आर गॉन बिकॉज दे आर ऑन द पुली. ए भी चला गया, ए भी गया, और दिस आल्सो इज गॉन. खत्म. बचा कितने? लेट्स सपोज इफ इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी v, ए वाला पॉइंट इज मूविंग v, दिस पॉइंट और दिस पॉइंट, ए मूविंग v, ए वाला भाई साहब भी v, और ये भाई साहब भी
वी से जाएंगे, है ना। देखो 1 2 3 एंड 4 वी डिक्रीज कर रहा है, दैट मींस हो गया ना, बस के ये हो गया हमारा आपका स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। इस पे और भी क्वेश्चंस आते हैं, वीड वाला क्वेश्चन आता है जहां से वीड वीड लगा होता है, वो भी होता है, विल डू दैट। सपोज एक वीड ऑन द स्ट्रिंग मूव कर रहा है, उसमें से स्ट्रिंग लगा है, उस पर भी आएंगे, विल डू दैट क्वेश्चन। फिलहाल के लिए बताओ, इस समझ में आ रहा है कि क्लियर हो गया, अच्छी बात। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, ऑल गुड ना। नहीं, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट है पगलू, हाँ वेज का इन्वॉल्वमेंट है बट है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। ओके, तो वी आर डन विद द स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द वेज कंस्ट्रेंट। देखो वेज कंस्ट्रेंट होता है क्या, आप ऐसे देखो, फॉर एग्जांपल लेट मी जस्ट हैव सम डायग्राम। सपोज वी हैव अ वेज, ऐसा कुछ है, एंड let's say this angle is theta. Now there is a rod, for example, is kept on, is coming on this way. There is a rod, है ना, वो इस पे आ रहा है, and let's say by some mechanism we have restrained its motion along the horizontal. इसे vertical move कर सकता है, okay? नहीं नहीं, वर्टिकल आएगा, नीचे आ सकता है, ऊपर नीचे कर सकता है, बट लेफ्ट राइट नहीं जाएगा। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। सपोज इस साइड में मैंने दोनों कुछ लगा दिया, इसके स्टॉपर लगा दिए, वेज के ऊपर नीचे, हाँ इट कैन गो अप एंड डाउन, राइट, इट कैन नॉट गो लेफ्ट एंड राइट, इधर नहीं जाएगा। नो, वेज कैन मूव, वेज इज ऑब्वियसली इट इज फ्री टू मूव, नो। So let's suppose the wedge is moving right with an acceleration or velocity v, and obviously अगर ये इस तरफ जाएगा ना तो नीचे आएगा ना घिसक कर, क्यों नहीं आएगा वो, इसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी तो थोड़ी हवा में टंगा रहेगा वो। हाँ, तो इट कैनॉट बी सस्पेंडेड, राइट, इट नीड्स सम सपोर्ट्स टू स्टैंड देयर। तो अगर वेज को शिफ्ट कर देंगे तो ऊपर से क्या करेगा, डर नीचे आ जाएगा वो। हम बचपन में खेलो है ना, बालू में खेलते हम लोग, सैंड में, फिर कोई बच्चा घसकाता है तो तुम अंदर चले जाते हो, नहीं खेले हो, जीवन बेकार है। मैंने बहुत खेला है, मैं मेरा भाई, हम लोग बचपन में सैंड में एक दूसरे के पैर को उसको जैम कर देते थे, फिर तो हटाओ तो मिट्टी नीचे गिरता है इंसान। सेम थिंग, यू नो, वी जस्ट पुश दिस, इसको मूव करोगे तो ऊपर से रॉड नीचे गिरेगा वो, करेक्ट है ना। बट व्हाट आई जस्ट डन कि इसको लेफ्ट राइट घूमने से मना कर दिया, भैया नहीं तुम या तो अप या डाउन करो, लेफ्ट राइट नहीं करोगे, एज सिंपल एज दैट। एनीवेज, तो अपन को इसका रिलेशन निकालना, मान लो कि बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग दिस रॉड इज कमिंग डाउन विद वेलोसिटी, लेट्स सपोज यू गॉट टू फाइंड द रिलेशन ऑफ यू एंड वी। तो बेसिकली कंस्ट्रेंट मोशन यूज क्यों करते हैं हम लोग, कंस्ट्रेंट मोशन इसलिए यूज करते हैं ना ताकि एक एक्स्ट्रा इक्वेशन मिल जाए टू सॉल्व। इफ यू रिमेंबर, मैंने पुली में बताया था सॉल्व करने के लिए, ब्लॉक पुली में, जब व्हेन द पुलीज आर आल्सो एक्सेलरेटिंग, उस टाइम पे वी हैव मोर वेरिएबल्स, और एक जो इक्वेशन मिलता है दैट वेलोसिटी ऑफ द पुली is equals to velocity of the block A in the vector form of course plus velocity of the B upon 2, याद है। So that is what we have used to get an extra equation, and same happens with the wedge constraint। यहाँ पे एक्स्ट्रा इक्वेशन मिलता है हमको इस वेज कंस्ट्रेंट या स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के कारण, और फिर सॉल्व कर पाते हैं उसको, ऑल गुड या। अच्छा एक बात बताओ, इफ दिस V is shifted towards left, रॉड नीचे आएगा, बट स्टिल दिस कॉन्टैक्ट एट दिस सरफेस वुड बी मेंटेन्ड, और ये इस तरफ जा क्यों रहा है, क्योंकि ये इसको धक्का मार रहा है, इसका वेट इस पे लग रहा है, एंड इफ देयर इज नो फ्रिक्शन इसका वेट इज गोइंग टू एक्ट अपॉन दिस अलोंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, और ये हमारा इस तरफ जाएगा, करेक्ट है जी, है ना, ऑल गुड या। सो आप ध्यान से देखोगे ना, तो वेज कंस्ट्रेंट क्या होता है ना कि ऑल द मूवमेंट है ना अलोंग द सरफेस परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट वो बराबर होता है। It could be acceleration, could be velocity, could be displacement। हाँ नहीं करेगा मतलब ना, एनजी इक्वल्स टू एन नहीं होगा यहाँ पे इस केस में। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो एक और एग्जांपल से समझाता हूँ, साइड बाय साइड देखो, लेट्स से वी हैव वन मोर सिस्टम ताकि आपको और समझ में अच्छा है।
इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, आपको बहुत जगह दिख जाएगा, है ना, ऐसा कुछ। लेट्स से समवॉट लाइक दिस, और इस तरफ से इसको रोका गया है विद द सपोर्ट, ताकि वो लेफ्ट नहीं भाग जाए ना, दैट शुड नॉट गो अदर वे। दिस ब्लॉक हैविंग लेट्स सपोज मास m, इसका मास मान लो कैपिटल M है, और लेट्स से दिस एंगल थीटा मान लेते हैं ना, इसका जो इंक्लिनेशन है वो थीटा है। दिस वेज, इस ब्लॉक का जो वेट होगा दैट इज गोइंग टू एक्ट डाउनवर्ड, एंड उसका एक कंपोनेंट विल बी अलोंग दिस वे, है ना, दैट इज गोना बी mg cos ऑफ ए थीटा है, ये भी थीटा हो जाएगा, है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर टू ग्राउंड, परपेंडिकुलर टू दिस, वो एंगल थीटा होता है। तो इसका जो mg cos थीटा होगा इस तरफ लग रहा होगा, और एक इसका कंपोनेंट हमारा ऐसा कुछ हो जाएगा ना। तो perpendicular to this surface in contact, what force is acting? mg cos theta, and this is responsible for the pushing of this lower block, वही तो धक्का मार रहा, अच्छी बात है। नाउ अब ध्यान से देखोगे, द नॉर्मल ऑन दिस ब्लॉक वो mg cos थीटा के बराबर ही होगा, बिकॉज दिस ब्लॉक इज पुशिंग दिस ब्लॉक विथ mg cos थीटा, तो इस पे एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा ए वाला ब्लॉक, एंड दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच, लेट्स सपोज दैट इज n, एंड द सेम थिंग दिस ब्लॉक इज गोइंग टू अप्लाई अ फोर्स ऑन दिस, परपेंडिकुलर लगाएगा इस पे, वो भी नॉर्मल इस तरफ हो जाएगा, एंड दे आर गोना बी इक्वल, है कि नहीं, न्यूटन्स थर्ड लॉ। नहीं 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 नहीं, मास स्मॉल से क्या फर्क पड़ता है, आप जितना फोर्स अर्थ पे लगाओगे, अर्थ उतना ही फोर्स आप पे लगाओगे, चाहे आपका मास चीटी के बराबर ही क्यों ना हो, राइट है, तो द नॉर्मल वुड बी इक्वल एंड ऑपोजिट रियल फोर्सेस है ना। नाउ दिस नॉर्मल विल हैव टू कंपोनेंट्स, वन कंपोनेंट विल बी दिस वे, वन कंपोनेंट इज गोइंग टू बी दिस वे, so let's say if it is theta, ये हो गया आपका 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया थीटा, तो दिस इज गोना बी थीटा, तो हो जाएगा आपका n sin थीटा, एंड दिस n sin थीटा इज रिस्पांसिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ दिस लोअर ब्लॉक, राइट है, उसमें भी नहीं जा रहे, वी आर गोना गो एंड टॉक अबाउट दैट लेटर व्हाइल डूइंग द एक्चुअल क्वेश्चन। अभी हम कंस्ट्रेंट का बात कर रहे हैं, वी आर जस्ट ओनली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कंस्ट्रेंट। तो कंस्ट्रेंट बोलता है भाई साहब कि अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटीज शुड बी इक्वल, और कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन वेरी सिंपल लैंग्वेज शुड बी इक्वल, तभी तो कांटेक्ट रहेगा ना। अगर सपोज कि इफ इट इज अप्लाइंग मूविंग विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, और ये आ रहा है आपको 4 मीटर पर सेकंड, तो धक्के मारेगा, और अगर सपोज कि 1 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, तो दोनों का कांटेक्ट वुड लूज, है ना। तो जस्ट लाइक दिस, इट इज जस्ट लाइक दिस, कि आप लेट्स सपोज बोथ द हैंड्स आर मूविंग दिस वे और दैट वे, तो दोनों का वेलोसिटी सेम होना चाहिए एट द सरफेस ऑफ कांटेक्ट अलोंग द नॉर्मल। स्ट्रिंग में क्या था, अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यहाँ पे अलोंग द नॉर्मल। तो लिख लो एक लाइन वेज कंस्ट्रेंट में, राइट द हेडिंग वेज कंस्ट्रेंट, wedge constraint, wedge constraint, component of velocity of blocks along the normal to the surface in contact should be equal, should be equal। अगर ऐसा नहीं हुआ तो the contact would be lost, क्लियर है, ऑलराइट। तो इधर से स्टार्ट कर लेते हैं, या फिर इधर ही देख लो, चलो इससे पहले करना, लेट्स डू दिस फर्स्ट देन विल गो टू दैट। इफ इट इज गोइंग कमिंग डाउन विद द वेलोसिटी u, वेल लेना, इस पॉइंट पे मैं थोड़ा देखा है तो आपको फिर से, इस पॉइंट पे द वेलोसिटी इज u डाउनवर्ड, तो इसका कंपोनेंट अलोंग द नॉर्मल निकालना अपन को, करेक्ट, वी हैव टू फाइंड द कंपोनेंट ऑफ दिस u अलोंग द नॉर्मल। ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, तो दिस इज गोना बी थीटा, तो ये क्या हो गया हमारा u cos थीटा, अदर कंपोनेंट से अपन को मतलब है। अच्छा इस v का देखो, v इज दिस में, एंड v का कंपोनेंट अलोंग दिस क्या हो जाएगा, थीटा है, 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा, है ना। तो v का कंपोनेंट अलोंग दिस कितना हो जाएगा, v sin थीटा, एंड दिस शुड बी इक्वल, तभी तो ब्लॉक साथ में रहेगा, राइट है ना। या दैट मींस फ्रॉम हियर वी गेट u cos of theta
इज इक्वल टू v sin थीटा। इक्वल है ना, प्लस नहीं, इक्वल होगा ना तभी तो साथ में रहेगा वो, राइट। दैट शुड बी, ओह शिट, अच्छा ये 438 हो गया, दैट शुड बी इक्वल। सर जस्ट टू मिनट सर, जस्ट 2 मिनट। वो हम भूल गए थे कि 4:30 से क्लास है, एनीवेज ठीक है। तो इफ द कंपोनेंट्स आर इक्वल ना, तभी तो साथ में रहेगा ना वो। अगर सपोज इफ दे आर नॉट इक्वल देन दे विल लूज द कांटेक्ट। तो दिस इज कॉल्ड द वेज कंस्ट्रेंट, u cos theta is equal to v sin theta. So the velocity u could be given as v tan theta. All good? Well, that is a wedge constraint. इसको आप करके आना, मैं इसमें होमवर्क दे देता हूं आपको, just solve it. Let's suppose this angle is theta and this is moving with the velocity v and this is coming down with the velocity u. Find the relation of u and v. Find the relation of u and v. All good? Exactly, along the normal to the surface in contact. Fair enough. So get this done. So we are done with this. In the next class, we are going to talk about some very nice problems on this constraint or pulley pe na. NLM pe without friction, we're going to do some advanced level problem in the next class. All right. Okay. Till then, take care and study well. Bye bye.